Om Shri Sai Ram. By the divine grace of Bhagwan, we have reached the final day of the Convener's Orientation Program, Unmilan, and Inward Endeavor. On this occasion, I welcome our beloved All India President Sir, Shri Nimesh Pandya, who has taken time out from his busy schedule to be with us and encourage all our conveners and district presidents. We have with us our two former state presidents, Shri Harikrishna Das Musa and P. Jagannath Prasad Rao Musa, currently the National Council member. I welcome both of them and we are blessed by your presence. We have with us the State President of Satya Sai Seva Organization, Odisha, Brother Narayan Prasad Sir. I welcome you, brother. We have with us Trust Convener of Shri Satya Sai Trust Odisha, Shri Antarjami Patnaik. I welcome you, sir. I also welcome all our trust members, district presidents, state coordinators, state in charges, district coordinators, office bearers, and last but not the least, the ones for whom this program has been made, the ones whom Bhagwan has blessed through this divine program, the conveners of over 200 Seva Samitis from all over the state of Odisha. We are very grateful to Bhagwan for having given us this opportunity of going through this 1 week program. I would like to present a brief outlay of what we had gone through in the last 1 week for the information of our guests and beloved AIP sir. We started this program last Monday on 27th July and it was a 1 week long program, 2 hours every day on the online mode. The main objective was to reconnect with the building blocks of our organization, the Samiti conveners. We started our discussions with the first class on the genesis and progression of Shri Satya Sai Seva Organization, where we discussed the 6 permanent objectives of the organization, the origin and the rich history of our organization, the charter of our organization, and the objectives of our organization. On the following day, we delved into the depths of personal sadhana as advised by Bhagwan and discussed the 9-point code of conduct and the 10-fold path of divinity. In the subsequent 3 days, we discussed the 3 wings of the organization, the spiritual wing, service wing, and the education wing. While discussing the activities of these 3 wings, our main focus was to understand how the activities of each wing is aligned to the objectives of the organization and how the integration of each wing can occur with the other wings. We realized that the base of our organization is spirituality, and we are a spiritual organization who carry out activities of service, activities in the field of education, and other activities. On the penultimate day yesterday, we had our state president, Brother Narayan Prasad sir, who enlightened all of us on the topic of living every moment with Sai and for Sai. The focus of this talk was to develop constant integrated awareness and to connect every activity of ours to Bhagwan. Without that connect with Bhagwan, we realized that these activities have no meaning. It is like a beautiful body without any life. We were taken on a trip of practical spirituality, and also we heard to the experiences of conveners from all over the state. And finally, we have reached the last day of the program, where we are going to listen from beloved AIP sir of what Swami expects from us. The hallmark of Sri Satya Sai Seva Organization is discipline. So what is the discipline with respect to handling of finances, with respect to the use of the scarf and badge, with respect to our relationship with other organizations, our interpersonal complexities, with respect to handling media, with respect to handling
In all aspects of our organization, the one common feature which Swami expects is discipline. And as true soldiers of Bhagwan, how we should maintain this discipline. This is what we are going to learn in this talk today. Before I hand over the session to Sir, I recollect as a student how Bhagwan would teach us discipline. His way of teaching was always with a smile and always with love, but inside he was always firm. Our beloved AIP sir also reflects the same principle in the same way, ever smiling and ever loving, but he is never compromising with the discipline. It is my honor to introduce sir to all of you. Shri Nimish Gulabrai Pandya, popularly known across the globe as Nimish Bhai, is a very lovable and approachable person for all ages, be it a child or an elderly person. He is the All India President of Sri Sathya Sai Seva Organizations India, and he is also the trustee of Sri Sathya Sai Trust Maharashtra. Sir is the chairman of National Council of Sri Sathya Sai Schools in India. He has been actively involved in Sri Sathya Sai Bal Vikas program since several years and has been associated with Education in Human Values program since its inception. By profession, he is a practicing advocate at the High Court of Bombay and a notary public. He hails from a family of attorneys and heads the law firm Pandya & Co. He specializes in corporate law and law related to real estate and is the chairman of Pandya & Jurists LLP, an international law firm specializing in taxation and media laws. A prolific speaker on any given topic, a dramatist par excellence, has directed several value-based ballets and dramas with children and youth based on value education and character formation. We are all blessed that Sir has a special soft corner for Odisha. As we were discussing in one of our talks, that Swami has a special soft corner for Odisha. Similarly, Nimish Pandya Sir also, we are blessed that he also has a special soft corner for Odisha, and we have been blessed by his multiple visits to the state where he has inspired our office bearers and inspired our youth to take up Swami's work further. In these days when we are not able to have his physical presence with us, we are truly blessed that he is able to address all our office bearers online through this platform. I now request Sir to kindly guide all of us on the topic of organizational discipline. Jai Sai Ram. At the outset, I offer myself at Bhagwan's divine lotus feet for giving me this opportunity to be addressing all my brothers and sisters in Odisha. मैं जानता हूं ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि उड़ीसा के सभी भाई बहनों से जो मुझे आज एक संवाद करने का मौका भगवान ने दिया है, उसके लिए मैं भगवान बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हम सब भगवान के स्वरूप में इस पूरी कायनात में जिंदा है। यही बात भगवान बाबा हमसे बार बार याद कराने के लिए आए थे और यही चाहते हैं कि हम इस बात में विश्वास करें कि हम सब उन्हीं के स्वरूप है, उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के अनुग्रह से जो सांस ले रहे हैं, ये अनुभूति हम सबको हो। उड़ीसा में मैंने देखा है कि जो अष्टोत्तर में जो नाम है आपद बांधवा, भगवान उड़ीसा के भाइयों बहनों के लिए एक बहुत बड़े आपद बांधव है, एक मित्र है, एक दोस्त है, जिनकी दोस्ती, जिनकी मित्रता उड़ीसा को संभाले रखी है, जिनका प्यार उड़ीसा के भाइयों बहनों को एक करके रखा है। ये एक बड़ा सराहनीय और उदाहरणीय चीज है जो हिंदुस्तान के सत्य साई सेवा संगठन में एक बहुत बड़ा एक चिन्ह है, जो प्रोत्साहन का चिन्ह है, ऐसा मेरा मानना है। भाइयों बहनों, जिंदगी में भगवान बाबा की सबसे बड़ी बात यह थी कि आचरण, भगवान बाबा इस आचरण पे बहुत ध्यान देते थे। प्रचार एक चीज है, ज्ञान एक चीज है, मगर ज्ञान के बाद आचरण, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरी छोटी सी समझ में जो मैंने बाबा से समझा है, वो इस बात पर गौर करता है
जिंदगी में ये काफी नहीं कि आप कहें कि आपको बाबा पे प्यार है, कि आप बाबा के भक्त हैं। जिंदगी में ये काफी नहीं कि आपको बाबा के बारे में पूरी जानकारी है। जिंदगी में ये काफी नहीं कि लोग कितना समझते हैं कि आप बाबा के भक्त हैं। बल्कि मेरा मानना है कि जो मापदंड हमारे जिंदगी का है, हमारे आध्यात्मिक जो एक प्रगति है, उसका जो मापदंड है वो है हमारा आचरण। और हमारे आचरण से लोग कितना प्रेरित होते हैं, ये मापदंड बड़ा इंपॉर्टेंट है भगवान बाबा की दृष्टि से। हमें उस स्तर तक पहुंचना है जब भगवान बाबा खुद कहें कि हाँ, ये मेरा भक्त। और ये आप कहेंगे कि बाबा किधर है, बाबा कैसे कहेंगे, मगर इसका मापदंड है हमारे अंदर का प्यार, हमारे अंदर की सहनशीलता, हमारे अंदर की जो एक शांति है। यही हमें बता सकती है कि बाबा की किताब में हमारा नाम है या नहीं। हमारे मन पर कितना काबू है, हमारे मन पर कितनी हमारी एक शक्ति है, अनुभूति है, इस पर बड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आप देखेंगे कि भगवान बाबा ने एक बहुत बड़ी बात हमसे कही। उन्होंने अवतार लेकर शरीर का रूप तो लिया, मगर उन्होंने बार बार हमसे कहा है कि सही मायने में सही साईं बाबा हमारे अंदर है, बाहर नहीं। इसलिए हमारी दृष्टि, आध्यात्मिक जो प्रकृति है, आध्यात्मिक जो प्रगति है, वो अंतर्मुख की होनी है। और इसीलिए शायद आपका जो ये एक कार्यक्रम आपने किया है 7 दिन का, उसका भी जो थीम है, उसकी भी जो थीम है, वो अंदर जाने की, अंतर्मुख होने की है। और इस बात को मैं चाहूंगा कि मैं और आप सभी भाई बहन साथ मिलकर पूरी तरह से समझने की कोशिश करें कि ये जो यात्रा है, ये अंतर्मुख होने की यात्रा है। यदि भगवान बाबा है तो वो मेरे अंदर है, बाहर नहीं। ये जानना बड़ा जरूरी है। भगवान बाबा की छवि, उनकी सुंदर तस्वीर, उनका सुंदर प्रशांति निलयम, ये सभी चीजें उस बात का सबूत है कि जो भगवान बाबा ने हमसे कहा है कि हम उनके, बाबा हमारे अंदर है। और इसलिए मेरा मानना है भाइयों बहनों कि जितनी सांसें हमारी बची है, जितनी क्षण हमारी जिंदगी के बाकी है, उसमें हमें बिना किसी विलंब के पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जो साई हमारे अंदर है, जो हमारा आपद बांधव है, जो हमारा मित्र है, उससे हमारा रिश्ता बड़ा गाढ़ और बड़ा सचोट करने की बहुत आवश्यकता है। इसमें हम पीछे ना हटें, ये संकल्प जरूर करें। यही हमारा लक्ष्य है, जिंदगी में सर्वोपरि लक्ष्य यही है। अब आप कहेंगे कि लक्ष्य तो है, मगर इसमें काफी बाधाएं आती हैं जो आपने और मैंने महसूस की। और उन बाधाओं में सबसे बड़ी बाधा यह है हमारा अहंकार, हमारा कर्ता भाव और हमारा मन जो इसके पीछे छुपा है। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं बचपन से नाट्य शास्त्र से जुड़ा हूं, इसलिए मैं हमेशा जानता हूं और मानता हूं कि जिंदगी भी एक नाटक का स्टेज है, एक थिएटर है, जहां पर आपको और मुझे सबको एक रोल दिया गया है। किसी का रोल छोटा है, किसी का बड़ा है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो डायरेक्टर, जो निर्देशक हमारे पीछे है, भगवान, उसका रोल सबसे उत्तम है, क्योंकि वही जानता है कि नाटक क्या है, उसका स्तर क्या है, उसका मर्म क्या है, और इस नाटक से समझना क्या है। हम सब रंगमंच पर कठपुतलियां हैं। जो निर्देशक पीछे से हमें समझाता है कि क्या करना क्या नहीं करना। यदि नाटक में कोई संत है, कोई विलन है, कोई सांसारिक व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये सब रोल हैं, ये से अलग अलग अभिनय के ढंग है, पर इससे नाटक के एक्टर को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसका मेकअप अलग हो, उसका कॉस्ट्यूम अलग हो, उसकी भाषा अलग हो, उसकी डायलॉग्स अलग हो, उसका स्थान नाटक में कुछ भी हो,
पर जैसे ही नाटक समाप्त होता है तो पीछे ग्रीन रूम में जाकर सब एक हो जाते। मगर इस बात को समझने के लिए नाट्य शास्त्र से ही हमें एक गुण मिलता है। पुराने जमाने में नाट्य शास्त्र में प्रॉम्प्टर्स होते थे। एक छोटा सा डब्बा स्टेज के नीचे होता था जहां पर हमें जो डायलॉग बोलने हैं यदि हम भूल जाएं तो वो आदमी नीचे से स्टेज से हमें प्रॉम्प्ट करता था कि अरे तुम्हारा अगला डायलॉग ये है, तुम्हारा ये है। वही भगवान काम करता है हमारे साथ में, हमारी आत्मा से, हमारे अंदर के कॉन्शियस से, हमारे अंदर से भगवान हमें बार बार जिंदगी के हर क्षण में मार्गदर्शन करते हैं कि देख तेरा डायलॉग अब ये है, अब ये बोल, अब ये कर, अब ऐसे बढ़, ऐसा आगे जा, वैसे आगे जा। ये बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर है। यदि इस नाटक के इस प्रॉम्प्टर की आवाज को यदि हमने समझ लिया और सुनने की क्षमता बढ़ा दी तो जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं, सब शांति शांति है। क्योंकि फिर हमें ये अनुभूति होती है कि ये सब तो खत्म हो जाएगा। जैसे ही आंख बंद होती है, जैसे नाटक का पर्दा गिरता है और हमारी आंखें बंद होती है, वैसे नाटक खत्म, फिर कुछ है ही नहीं। तो ऐसा यदि नाटक है तो हमारे मन में रोजाना तौर पे हम विषय वासनाओं को क्यों भरें? जो डायलॉग है बोल के खत्म हो जाए, जो काम है करके हट जाए। इसमें मैं कौन, तू कौन, प्रशंसा के लायक कौन, इसमें बेस्ट एक्टर जैसा है ही नहीं। क्योंकि पूरे स्टेज में एक नौकर के पात्र को निभाने वाला, एक राजा के पात्र को निभाने वाला, एक दानी के पात्र को निभाने वाला, एक राक्षस के पात्र को निभाने वाला, सब अंत में तो अभिनेता है। इसमें हकीकत कुछ नहीं। नाटक खत्म होने से सब गायब। ये बाबा हमें बार बार समझाते थे और यही जिंदगी का रवैया है। हमारे सत्यसाई भाइयों बहनों को जिनको बाबा का अनुग्रह मिला है, इनको इस बात पर गौर करना जरूरी है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है एक नाटक है। एक पात्र दिया गया हमें, उस पात्र को हमें निभाना है, उस पात्र को हमें उत्कृष्टता से निभाना है। और आप देखेंगे जब भी किसी अभिनेता को बधाई दी जाती है तो अभिनेता हमेशा निर्देशक को दाद देता है कि नहीं नहीं, ये तो डायरेक्टर ने मुझसे करवा लिया। और शायद हमारे डायरेक्टर भी यही चाहते हैं कि जिंदगी में हम जो कुछ भी करें, जो भी पात्र निभा रहे हैं, जो भी हमारी भूमिका है, उस भूमिका को जो श्रेय है हमारे निर्देशक को दें। और सत्यसाई सेवा संगठन में हम यही सीखते हैं। हमारे अभिमान, हमारे कर्ता भाव को हम मिटा देते हैं। तीनों विंग के कार्यक्रम में यही निष्ठा है कि जो भी हम करें भगवान को अर्पण कर दें तुरंत। ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, उसी क्षण भगवान को अर्पण करके उससे हम मुक्ति पाएं। यही हमारी संस्था की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हम कहते हैं कि सत्यसाई सेवा संगठन दुनिया का अजीबोगरीब संस्था है, संगठन है। क्योंकि यहां हम जो कुछ भी करते हैं उसका श्रेय हम नहीं लेते, उसका श्रेय भगवान को देते हैं जो हकीकत में उसके लायक है। और ये जो बात हम करते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और यही सीखना है। भाई और बहनों, सत्यसाई सेवा संगठन में जो पूरा हमारा जो एक संकल्प है वो इसी बात का है कि हमारा अहंकार मिटे, हमारा कर्ता भाव मिटे, हम इस बात की अनुभूति करें कि हमारे अंदर भगवान है, हम इस बात की अनुभूति करें कि जिससे हम परस्पर का संबंध आता है वो सभी भगवान के स्वरूप में है। यही बात को बार बार याद रखें। भजन करें तो याद रखें, नगर संकीर्तन करें तो याद रखें, बाल विकास करें तो याद रखें, सेवा करें तो याद रखें, एडमिनिस्ट्रेशन करें तो याद रखें। जो भी हमारा जो पात्र है उसको निभाने में इस बात को याद रखें कि कर्ता धर्ता भगवान श्री सत्यसाई बाबा जो शक्ति है हमारे अंदर है, उसी के फलस्वरूप सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता। दोस्ती निभानी है तो भगवान से निभानी, प्यार करना है तो भगवान से करना है। और भगवान से प्यार करना मतलब उसकी पूरी कायनात को प्यार करना। और शायद इसीलिए जो मुझे आज विषय दिया गया है भाई चिन्मय ने और नारायण ने, उसमें काफी अनुशासन की बातें लिखी गई, काफी डिसिप्लिन की बातें लिखी गई। और ये जो डिसिप्लिन की बातें उसको समझना बड़ा आवश्यक। आप लोगों ने काफी उस पर चर्चा की है, मैंने जो सुना, मगर कुछ ऐसे मुद्दे जो मेरे मन में है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये हमारी संस्था आध्यात्मिक संस्था है।
ये कोई एनजीओ नहीं। आप समझते ना इस बात के फर्क में। एनजीओ वो है जो पैसे के माध्यम से सदुपयोग करके दूसरों के लिए कुछ करता है। हमारे यहां नहीं, हमारे लिए पैसे की कोई भूमिका नहीं। हमारे यहां निष्काम सेवा और अनकंडीशनल लव की महिमा है। हमारी पूंजी क्या है? हमारी ताकत है कि हम लोगों से बेशुमार बिन शर्त ही प्यार कर सकते हैं। और जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो इस भाव से नहीं करते कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं। हम इस भाव से करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप के लिए कर रहे हैं। और लक्ष्य हमारा ये है कि हमारे अंदर के भगवान की अनुभूति करके जिसके लिए ये काम हो रहा है उसके अंदर भी हम भगवान को देखें। गॉड सर्विंग गॉड, भगवान की सेवा करते हैं, जिसमें हम दृष्टा बन जाते हैं, हम विटनेस बन जाते हैं। और हमें ये रास लीला देखने का आनंद पड़ता है कि जैसे भगवान, हमारे स्वरूप का भगवान दूसरे के स्वरूप के भगवान से कैसे वार्तालाप करता है, कैसे एक दूसरे की सेवा करता है। ये अद्भुत एक दृश्य जो है रास लीला का, जिसके लिए हम विटनेस बनकर देखते हैं। हमारे गुजरात में एक बहुत बड़े संत थे, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की जिंदगी में भी भगवान कृष्ण ने रासलीला दिखाई थी कि तू कुछ नहीं है, जो भी करता हूं मैं ही करता हूं। गीता में भी, गीता वाहिनी हम पढ़ते हैं, गीता में भी भगवान बार बार कहते हैं कि तुम तो कुछ नहीं हो। अर्जुन से कह देते, इतना महारथी, उससे कह देते हैं तू कुछ नहीं, जो भी करना मुझे करना है। मैंने तुमको मार दिया है, सिर्फ तेरा उपयोग करता हूं दिखाने के लिए कि तू मारता है, वरना मैंने तो मेरा काम कर दिया। भगवान बाबा ने मुझसे भी मेरे बचपन में कहा था कि तुम कुछ प्लानिंग नहीं करो, तुम्हारा सब प्लानिंग मैंने किया है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी होने वाला है वो सब मैंने कर चुका हूं। सिर्फ दृष्टा बनकर देखो, जो होता है दृष्टा बनकर देखो। इसको हमारी जिंदगी में छूने मत दीजिए। आपको और मेरी जिंदगी में सुख दुख, जो जिसको हम सुख और दुख कहते हैं, इन दोनों चीजों को हमको छूने मत दीजिए, अपने आप को छूने मत दीजिए। हमारे मन को इससे परेशान मत होने दीजिए। मन का तो काम है परेशान करना, भागना, दौड़ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये मन की प्रवृत्ति है, उसका चरित्र है। इस चरित्र को हमें समझना जरूरी है कि मन को काबू करना, मन को हमारे वश में रखना, जिससे कि हम दृष्टा बन सके। मन हमको ये ना समझाए कि तुम करते हो, तुमको इसने ये किया, तुमको इसने ये बोला, अब तुम ये सामने ये करो, उसको तुम गाली दो, उसने तुम्हें गाली दी। ये जो मन हमें बार बार कहता रहता है, हमें भ्रम में डालता है, इस मन को काबू करना बहुत बहुत जरूरी है भाई और बहन। यही जो मन है वो हमें बार बार दुखी करता। और ये मन किसी के बस की बात नहीं, बड़ा आसान काम नहीं। अरे भल भले ऋषि मुनि बिगड़े हैं, भल भले बड़े बड़े ऋषि मुनि बिगड़ जाते हैं। हम में भी हमारे जो साथी हैं कितने सालों से बाबा के साथ रहे, मगर जब मन की बात आती है तो काबू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए सतत साधना चाहिए। इसके लिए कांस्टेंट इंटीग्रेटेड अवेयरनेस, एक अनुभूति, हर पल की अनुभूति चाहिए कि मैं नहीं हूं, भगवान है, जो करता है भगवान। अब आप देखें, बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं। आप बहुत मेहनत लगा के सेवा करें और आपसे कोई ये ना कहें कि अरे भाई निमिष तुमने कितना अच्छा काम किया है, तो मन जरूर निमिष को कहता है, देखा तुमने इतनी मेहनत करी मगर तुम्हें फल नहीं मिला। अब निमिष को मन से कहना पड़ेगा, मन शट अप, मैंने कुछ किया ही नहीं, भगवान ने किया है, मैंने तो पात्र निभाया। अब किसी ने आके निमिष से कह दिया कि निमिष तुम बहुत बड़े इंसान हो। अब मन निमिष से कहेगा, देखो तुमको वो बुरा कह करके अब तुम भी सामने उसको बुरा बोलो। तो अगर अहंकारी निमिष है तो जरूर कहेगा नहीं नहीं मैं जाके कुछ करता हूं, मगर साधक निमिष है तो मन से कहेगा, मन चुपचाप बैठ जा, ये तेरा काम नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, उसने जो बोला उसकी मर्जी, मैं तो अपने भगवान के चरणों को पकड़ कर ही बैठूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये जो छोटी छोटी बातें साधना की है, ये बड़ी आवश्यक है भाइयों। और इसके लिए अनुशासन चाहिए, इसके लिए पर्सनल साधना चाहिए, इसके लिए हमारे जो 9 पॉइंट्स ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको इस नजरिए से देखना है। हमारी संस्था में हम ऊंची आवाज से नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि क्या हम भगवान के सामने ऊंची आवाज से बात करेंगे? नहीं करेंगे। अगर सामने में भगवान है तो उससे ऊंची आवाज में मैं कैसे बात करूं? क्या मैं भगवान के सामने गुस्सा कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता तो किसी और के सामने नहीं कर सकता। क्या मैं भगवान की ईर्ष्या कर सकता हूं?
यदि भगवान की ईर्ष्या नहीं कर सकता तो किसी इंसान की ईर्ष्या भी नहीं कर सकता। क्या मैं भगवान मेरे अंदर होने के बावजूद मैं डिप्रेस हो सकता हूं? नहीं हो सकता, क्योंकि यदि भगवान मेरे अंदर है, ओम श्री साई आनंददाय नमः, ओम श्री साई आनंददाय नमः, अगर वो आनंद मेरे अंदर है, शांत मूर्तये नमः, अगर वो मेरे अंदर है, हम जब अष्टोत्तर नामावली पढ़ते हैं तो अष्टोत्तर नामावली वो भगवान के शरीर को नहीं कहते हैं, हम अष्टोत्तर नामावली अपने अंदर बैठे हुए भगवान से कह रहे हैं कि ये सभी गुण मुझ में आ जाए, क्योंकि वो भगवान जो मेरे अंदर है उसके ये गुण है और वे गुण मेरी जिंदगी में प्रभावित होकर समाज के सामने आए। ये अष्टोत्तर नामावली की बहुत बड़ी बात है भाई और बहन, इसको समझना बड़ा आवश्यक है, इसको देखना। ये अनुशासन साधना का जो है, सुबह का मेडिटेशन, अष्टोत्तर नामावली, भजन, नगर संकीर्तन, स्टडी सर्कल, ये सब चीजें हमारे साधन है हमारे मन पर काबू करना और हमें बार बार याद कराने के लिए कि ये श्रेय मुझे अंदर के भगवान को देना है, मुझे कुछ साथ लेके नहीं जाना। दो हाथ जब मृत्यु आएगी भाई और बहनों, तब कुछ साथ में लेके जाना नहीं, हमारे दोस्त, हमारे सगे, हमारे संबंधी, हमारा पैसा, हमारा सुख, हमारा दुख, सब कुछ यही रह जाता है। अब सोचो, सबसे ज्यादा अमीर इंसान कौन है? जो मरने के वक्त अपने दिमाग में कोई ही चित्र लेके नहीं जाता, सिर्फ भगवान के मन को लेकर जाता है, भगवान के दर्शन लेके जाता है, वही। और इसके लिए अनुशासन में भूलना बड़ा जरूरी है। हमें हर क्षण को अपने मन को खाली करके एक नए दिव्य अनुभव के लिए तैयार करना है। इसमें बैगेज नहीं चाहिए, नो बैगेज, लेस लगेज मोर कंफर्ट। ये कोई सामान नहीं, ये बैग और बिस्तरे की बात भगवान नहीं कर रहे। भगवान हमारे मन का जो कचरा है, हमारे मन में जो हम बैगेज लेके चलते हैं, उसको खाली करने की बात कर रहे हैं। हर क्षण मन नए अनुभव के लिए तैयार होना चाहिए, नो बैगेज, पुरानी बातें याद नहीं करनी, ये बहुत अनुचित। और इसलिए हमारी संस्था में ये जो मूलभूत जो अशांति का कारण आज की जिंदगी में है, वो अहंकार और पैसा है भाइयों में। संबंध, कंपनी, किसके साथ हम कंपनी रखते हैं, किसके पैसे के पीछे हम पड़े हैं, और ये जो संबंध हम बनाते हैं, ये इसके लिए ध्यान देना जरूरी। इसलिए सत्य साई सेवा संगठन में भगवान बाबा ने बार बार कहा है कि सत्य साई सेवा संगठन पैसे को हाथ नहीं लगाए, पैसे से दूर रहेगी, क्योंकि हमारी संगठन की जो सेवा की महिमा है, साधना की महिमा है, उसमें पैसा का कोई आवश्यकता नहीं। निजी स्तर पर एक साधक के लिए, साधना करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं, ये बाबा बार बार कहते। इसलिए सत्य साई सेवा संगठन में समिति के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर या स्टेट के स्तर पर सत्य साई सेवा संगठन पैसा को हाथ नहीं लगाएगी। अब मैंने ये कह दिया, मगर पैसा भी एक भगवान का अंश, पैसा भी भगवान की एक कृपा है, लक्ष्मी माँ है, इसका उपयोग है। इसलिए भगवान बाबा ने हर स्टेट में श्री सत्य साई ट्रस्ट का निर्माण किया, एक न्यास का निर्माण किया। ये जो न्यास के हमारे भाई बहन हैं, जैसे अंतर्यामी साहब हैं, अंतर्यामी पटनायक जी आज न्यास संभालते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग हैं, जगन्नाथ प्रसाद राव जी हैं, दास साहब हैं, ये सब जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो हमारे न्यास के जो ट्रस्टीज हैं, इनको भगवान बाबा ने जिम्मेदारी दी है कि पैसा आप संभालोगे। ये ट्रस्टीज ट्रस्ट के ट्रस्टीज नहीं है, भगवान बाबा के ट्रस्टीज हैं। और जो भी पैसा आता है वो नेक पैसा है, वो पैसे का एक एक पैसे का हिसाब रखा जाए, सिर्फ हिसाब रखा ना जाए, ये हिसाब समाज के सामने पेश किया जाए। जिसने पैसा दिया है उसको ये अनुभूति कराई जाए कि आपके पैसे का सदुपयोग हुआ है, जिसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं, जो ट्रस्ट का जो रिपोर्ट बनता है। और इसीलिए समाज में, हमारे संस्था में जिस किसी को पैसा दान करना है, ये दान का पैसा हमारे ट्रस्ट में जाना चाहिए और ट्रस्ट के जरिए ही इसका उपयोग होना चाहिए, और जिससे कि दुरुपयोग ना हो। लोग पैसे को लेकर सत्य साई सेवा संगठन पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। इसलिए जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन है, ये बड़ी आवश्यक है कि कोई भी समिति मेंबर, कोई भी समिति कन्वीनर बैंक अकाउंट नहीं खोलेगा। अगर वो बैंक अकाउंट खोलेगा
तो उसको समिति कन्वीनर से तुरंत निकाल देना चाहिए। अगर कोई भी भक्त भगवान बाबा के नाम से पैसा जमा कर कर अपने पास रखता है, वो भगवान बाबा का सबसे बड़ा द्रोही है। जो भी यदि कोई सामने पैसा अगर दान करने आता है तो उससे कहना कि ये हमारा ट्रस्ट है, ये हमारा बैंक अकाउंट है, इसमें आप डालिए, इसी से उपयोग होगा। इसलिए स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, समिति कन्वीनर, ऑफिस बेरर, स्टेट लेवल, इन किसी को कोई हक नहीं है कि पैसे को हाथ लगाए। जो भी पैसा देते हैं पैसा ट्रस्ट में डालें और ट्रस्ट से काम करें। इससे बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। आज के युग में पैसा ही सबसे बड़ा कारण है दुख का, और पैसा अहंकार लाता है। ये मेरा पैसा था, मैंने दिया, मेरे पैसे से ये काम हुआ, ये सब नहीं चाहिए हमें। जो भी होता है भगवान के कारण होता है, देने वाला भी वो, खाने वाला भी वो, खिलाने वाला भी वो। हमारी तो ये भावना है, हमारी ये श्रद्धा है, हमें इस बात से आगे बढ़ना है। इसलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द सत्य ऑर्गेनाइजेशन, और हमें इसका कोई उल्लंघन नहीं करना है भाइयों बहन। दूसरी बात, भगवान बाबा हमेशा कहते थे कि हमारी संस्था अद्भुत संस्था है। भगवान बाबा के हाथ हमेशा ऐसे हैं, भगवान बाबा के हाथ कभी ऐसे हुए ही नहीं हैं, और हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि भगवान बाबा का हाथ ऐसे हो जाए। किसी कॉर्पोरेट सेक्टर से, किसी गवर्नमेंट से हमें कभी कुछ नहीं मांगना है। तो यदि हमें कुछ मांगना है तो हमारा तो भगवान है जिससे हम मांगेंगे, हमें किसी और से कुछ नहीं मांगना भाइयों, कभी नहीं मांगना किसी से पैसा। ये जो CSR का चक्कर चला अभी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लोग पागल हो जाते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं, ये सब गलत है। ये हमें करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी जो सेवा है एक एटीट्यूड है। हम जो सेवा करते हैं उसकी भावना भगवान को पसंद है, उसकी मात्रा भगवान को नहीं पसंद। भावना क्या है? भावना की शुद्धता, भावना की आध्यात्मिकता, ये भावना हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हमें पैसा लेके काम नहीं करना, हमें लोगों के प्यार को जोड़कर काम करना है, क्योंकि जो प्यार में जो परिवर्तन की शक्ति है वो पैसे में नहीं है। पैसे का स्वरूप अहंकार है, पैसे का स्वरूप ममता है, और जो प्यार का स्वरूप है वो दिव्यता है। इस प्यार की ताकत को लेके हमें काम करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि संस्था में जो बाबा ने हमें निर्देश दिया है, वो सेवा का जो परिभाषा है वो त्याग की है। वो अपने अंदर की जो शक्ति है उस शक्ति को प्यार के स्वरूप में आचरण में लाने की काम है। सेवा इज एन एटीट्यूड इन द सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन। सेवा इज नॉट ए प्रोजेक्ट। सेवा इज नॉट अ प्रोजेक्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक वृत्ति है। हम सुबह से शाम तक हमारी पूरी जिंदगी में जितने सांसें हैं वो सभी सांस को सेवा में लगाए। पहली सेवा तो अपने आप की साधना की, दूसरी सेवा हमारे परिजनों को, हमारे परिवार में जितने लोग हैं उनकी सेवा पहले करनी। सोचिए कितने आडंबर वाले लोग होंगे जो अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाके सेवा करते, अपनी पत्नी की सेवा नहीं करते, पति की सेवा नहीं करते, बच्चों की सेवा नहीं करते, घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते, हमारे परिजन जो हमारे सगे संबंधी, इनकी सेवा हमें पहले करनी, फिर जाके बाहर समाज में सेवा करनी। क्योंकि हमारी सेवा की परिभाषा भगवान के दर्शन करने की, और यदि हमारे परिवार के लोगों में हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते तो बाहर क्या करेंगे। इसलिए इस बात का भी ध्यान देना जरूरी है कि हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड, गवर्नमेंट, इन सभी लोगों से पार्टनरशिप अलाउड नहीं है। भगवान बाबा ने कहा है नो पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप तो दो लोगों के अलग अलग जो उनकी कैपेबिलिटीज है उसकी पार्टनरशिप होती है। यहां तो हमारी सुप्रीम कैपेबिलिटी है भगवान की, जिससे कोई पार्टनरशिप नहीं कर सकता। हमारी जो सुप्रीम कैपेबिलिटी दिव्यता की है वो सिर्फ दे सकती है, किसी से पार्टनरशिप नहीं कर सकती। हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, मांग कर काम करना ये भगवान के चित्रगुप्त के चिट्ठे में ऐसा अकाउंट नंबर ही नहीं है। भगवान के चित्रगुप्त के जो हिसाब का जो चिट्ठा है उसमें सिर्फ एक ही खाता है, प्यार का, त्याग का। और कितने लोगों ने भगवान जो चित्रगुप्त जिसका बॉस है भगवान, उसको कितने लोगों ने श्रेय दिया, उसी का चिट्ठा है और कुछ नहीं। तो जब भगवान का हिसाब किताब ऐसा है तो हम बाहर के हिसाब किताब को क्यों देखें। इसलिए
नो पार्टनरशिप। हाँ, वी कैन हेल्प, गवर्नमेंट के काम में मदद करो, जुड़ना नहीं, पार्टनरशिप नहीं करना, नो एफिलिएशन, नो ब्रिंगिंग टुगेदर, नो जॉइंट वेंचर, नहीं, कुछ नहीं। सत्साई सेवा संगठन भगवान श्री सत्साई बाबा का संगठन है जो परमात्मा है, और परमात्मा के साथ पार्टनरशिप नहीं होती कभी जिंदगी, जॉइंट वेंचर नहीं होता। इस बात को ख्याल करना बड़ा आवश्यक है और बड़ा जरूरी है भाइयों बहन। तो पैसे मत लगाइए, पार्टनरशिप नहीं करनी है। हमें हमारे व्यक्तित्व को साधना, सेवा और त्याग के मात्राओं में इतना अद्भुत करना है कि जिसको प्रेरित कर कर और लोग हमसे जुड़ें। यही हमारा लक्ष्य, ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द समझ सकें कि उनकी जिंदगी में उनका भगवान उसके अंदर, ये बड़ा जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जिंदगी में, हमारी संस्था में बहुत आवश्यक है भाई और बहनों कि हम जो स्कार्फ पहनते हैं, हमारा जो ध्वज है, हमारा जो बैज है, हमारी जितनी हमारी सिंबलिज्म जो है, एक किताब बनी एसेंस की, जो मैं मानता हूं कि उड़िया में सबको मिली होगी, सबके पास होगी। उसमें जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स की बहुत बड़ी महत्व है इस किताब में, एसेंस। इस किताब में जो भी भगवान बाबा ने बताई हुई बातें हैं, उसको बहुत ही अच्छे विंग से समझाया गया है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको समझें, इसको आगे बढ़ाएं। डिसिप्लिन की जहां तक बात है कि अंतर के परस्पर के संबंधों को हमारी संस्था में हम कैसे देखें। अक्सर हमने देखा भाइयों बहनों कि हमारी संस्था में हम सब मनुष्य, हम साधना के पथ पर है, इसलिए गलतियां कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होगी, गलतियां होगी, गलतियां कभी बड़े मात्रा में होगी, कभी छोटी मात्रा में होगी, मगर होगी। मगर हमारा परिवार है, इस परिवार से कोई बाहर नहीं जा सकता भाइयों बहन। हमें सबको साथ में रखना है। कोई गलती करे तो हमारा ही भाई, हमारी बहन है, उसको समझाना है, कुछ देर तक उसको शांत होने का मौका देना, और शांत होने के बाद फिर से उसको परिवार में जोड़ना है। क्योंकि ये हॉकी की गेम के जैसा है, फुटबॉल की गेम के जैसा है। यदि कोई फुटबॉल का प्लेयर या कोई हॉकी का प्लेयर गलती करता है, थक जाता है, तो उसको बेंच पे बिठाया जाता है, और जैसे ही वो शांत हो जाता है उसको वापस लिया जाता है। हमारी संस्था में भी परस्पर के संबंध में इस भाषा का हमें भी उपयोग नहीं करना, इसको निकाल दो, ये आदमी बुरा है, इसने उल्लंघन किया, इसने इंडिसिप्लिन, निकाल देते हम किसी। अगर ऐसी बात होती तो भगवान बाबा ने हम सबको कब से निकाल दिया होता। हमें लगता ही नहीं अभी तक, इतनी गलतियां हम करते हैं, फिर भी भगवान बाबा ने हमको कभी निकाला नहीं। उल्टा कहा है, आश्वासन दिया है, इवन इफ यू वांट टू गो अवे फ्रॉम मी, आई विल नॉट लेट यू गो। अगर आप भी निश्चय करोगे कि मुझे भगवान से दूर हटना है, तो मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। अरे जाएंगे कैसे? जिंदा ही उसी के कारण है। अगर वो सांस नहीं लेते हमारे अंदर तो हम जिंदा कहां से होते? जिंदा हो ही नहीं सकते। वी वुड नेवर लिव इफ यू हैड लेफ्ट अस। अगर वो बात भगवान हमसे करते तो हम लोगों को कैसे छोड़ दें? हम लोगों को नहीं छोड़ सकते भाइयों बहनों। गलती करें, समझाना हमारा फर्ज, शांति से, प्यार से समझाना है। अगर डांटना भी है तो प्यार से डांटना है। स्वामी used to always say, you can hiss like a snake, but you cannot bite like a snake. बाइट नहीं करना। अगर बाबा भी गुस्सा दिखाते थे, झूठा मूठा गुस्सा दिखाते थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मेरी जिंदगी का। मैं बहुत छोटा था, धर्म क्षेत्र में एक बार बाबा आए थे, और मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, कुछ प्रोग्राम हो रहा था, और उसमें मैं किसी कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं कुछ कार्यक्रम बच्चों के साथ कर रहा था। उसमें से भगवान अचानक स्टेज के ऊपर से चिल्लाए, सेल्फिश, बंद करो। ये आप सोच सकते हैं, 5000 लोग हैं, स्टेज पे बाबा बैठे हैं, और बाबा ऊपर से जोर से चिल्लाते हैं, सेल्फिश, बंद करो। अब मैं यंग आदमी था, मेरे तो समझ में उस वक्त आध्यात्म का भी दायरा ही शुरू हुआ था, मैं समझ ही नहीं पाया। मैं बड़ा विश्लेषित हो गया, मैं एकदम, मेरा मन बड़ा बेजार हो गया।
मगर उस टाइम मेरे हाथ में बच्चे थे, तो मैंने कुछ क्षण निकाले बच्चों को वहां से हटाने की। उस क्षणों के दरमियान में बाबा जहां बैठे थे उसके पीछे इंदुलाल शाह खड़े थे। तो बाबा ने जब चिल्लाया तो अपेक्षित था कि मैं तुरंत बंद करूं, पर मैंने 30 या 40 सेकंड और लिए, और इस 40 सेकंड में पीछे से इंदु भाई हाथ करके कह रहे थे निमिष बंद कर बंद कर बंद। अब मैं तो बंद करने ही वाला था, भगवान ने कहा था, पर वो 40 सेकंड में बच्चों का इंतजार कर रहा था कि बच्चे अंदर आ जाए तो उनको बुरा ना लगे। ये कार्यक्रम खत्म हो गया, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया, मैं अपने मन को काबू नहीं कर पाया, मन को संभाल नहीं पाया। मुझे लगा कि मुझसे बुरा इंसान इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। जब साक्षात भगवान ने कह दिया सेल्फिश, तब मैं क्या करूं, ये तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। मैं बड़ा निराश होकर बच्चों को घर भेजा, और उसी कार्यक्रम के बाद में ऊपर भगवान का जो घर है सत्यदीप, उसमें एक मीटिंग चल रही थी, जो मीटिंग पहली मीटिंग थी EHV टीचर्स की उस जमाने में। उसमें मुझे जाना था क्योंकि मैं भी EHV टीचर, मगर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया था कि कोई वैल्यू नहीं, सेल्फिश आदमी है। तो मैं बड़ा दुखी होकर नहीं गया। मैं भगवान का प्यार देखें आप, मेरी उपस्थिति के बगैर भगवान बाबा ऊपर गए, उस मीटिंग की शुरुआत करी। ये देखा निमिष, मैंने कहा बंद करो तो नहीं किया, इंदुलाल शाह ने बोला बंद करो तो किया। फॉलो द मास्टर, फॉलो द मास्टर। मैं तो था नहीं उधर, मुझे बाद में लोगों ने बताया कि स्वामी तो ऐसा कह रहे हैं। तो शाम को जब मेरी ड्यूटी लगी थी स्टेज पर, तो स्वामी जब आए दर्शन के लिए, तो मैंने उनका पैर पकड़े, स्वामी नॉट इंदुलाल शाह, यू आर मास्टर, नॉट इंदुलाल शाह, यू आर मास्टर। मैं तो पकड़ के जप करना शुरू कर दिया। स्वामी कहते नहीं नहीं मुझे मालूम है, मगर बॉम्बे में अच्छा गुण है, फॉलो द मास्टर। ऐसे नहीं नहीं स्वामी, यू आर द मास्टर। मगर स्वामी ने बड़े प्यार से अंत में मुझे स्वीकारा और मुस्कुराया। भाइयों बहनों, इस गुस्से के पीछे कितना बड़ा फायदा मेरा था वो मुझे बाद में पता चला। उस फायदे के, उस गुस्से के पीछे असीम प्यार था, असीम मोहब्बत थी, जिस मोहब्बत ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। हमारी संस्था में हमारे ऑफिस बेरर्स, स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट कोऑर्डिनेटर, समिति कन्वीनर्स, भगवान के इस स्वरूप को जानना जरूरी है। यदि हमें किसी को डांटना भी है तो उसके भले के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, प्यार मोहब्बत से, गुस्सा करके नहीं, अपने आप पर काबू ना रखते हुए। गुस्सा करने का हमें कोई हक नहीं, हमारी अथॉरिटी दिखाने का कोई हक नहीं। हमारा एक ही हक बनता है, प्यार करना, प्यार से लोगों को सुधारना, विनम्रता से लोगों को सुधारना। यही हमारा हक बनता है भाइयों बहन, और कोई हक नहीं बनता। परस्पर के संबंध में, डिवोटियों के बीच में, भाइयों बहनों के बीच में भी अगर किसी का कहना हुआ कुछ बुरा लगा, तुरंत उसका निवारण करें, तुरंत सामने बैठकर फैसला करें। एक दूसरे के प्रति घृणा ना रखें, एक दूसरे के प्रति परिताप ना रखें, प्रतिशोध ना रखें। ये प्रतिशोध, ये ताप, ये घृणा, ये भगवान बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं। माफ कर दे लोगों को, फॉरगिव पीपल, फॉरगिव एंड फॉरगेट, forget all the harm that others have done to you immediately, forget all the good that you've done to others immediately। बिल्कुल एक क्षण के लिए भी साथ में ना रखें। अब देखो, अगर इसका पालन हो तो हमारी संस्था में कभी झगड़ा हो सकता? कोई डिवोटी कह सकता है कि नहीं ये मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खराब है, उसने मुझसे ऐसे कहा, अभी मैं अलग संस्था बनाऊंगा? या किसी के सामने यदि किसी ने गुस्सा कर दिया तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं। जिस आदमी ने गुस्सा किया उसकी कमजोरी, उसकी बीमारी है। अगर आपने कोई गलत नहीं किया, आपकी आत्मा आपको कहता है कि ये आपने सही किया, तो शांत रहें, बिल्कुल रिएक्शन ना करें, क्योंकि हम सब भगवान बाबा के प्रतिबिंब हैं। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से या तो भगवान का गुणगान गाया जाएगा या तो भगवान को गालियां मिलेगी कि देखो भगवान की संस्था के लोग कैसे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों बहन, इसका हमें खास ख्याल रखना है। भगवान के नाम को खराब करना ये गलत बात, ये नहीं होना चाहिए। और हमेशा भगवान बाबा से प्रार्थना करें कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं ऐसा कुछ ना करूं जिससे कि तुम्हारे नाम पर लांछन आए या तो आपको कुछ कहे। ये बहुत बड़ी जरूरी बात है भाइयों बहन, जिंदगी का मर्म, जिंदगी। और देखें आज की जिंदगी में भगवान का प्रकोप देखें। इस कोविड के जमाने में किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। कैसे पता होगा? क्योंकि इंसान इंसानियत भूल गया है।
इंसान अनुशासन भूल गया है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बाबा हमेशा कहते हैं डिसिप्लिन आर लाइक द टू बैंक्स ऑफ द रिवर, जिसके बीच में नदी जो बहती है वो सबका कल्याण करती हुई बहती। अगर दो नदी के किनारे ना हो तो कितना प्रलय हो सकता है। आपने देखा उड़ीसा में, बिहार में, असम में आज नदी के जो बांध टूटते हैं तो कितना प्रलय होता है। अगर अनुशासन है तो भगवान की महिमा है, अनुशासन है तो हमारा उत्कृष्ट है। अनुशासन के बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द साई ऑर्गेनाइजेशन, बट डिसिप्लिन विद लव, not discipline with anger, not discipline with jealousy, not discipline with a kind of sense of evenness or getting even. No, ऐसी बात नहीं। प्रतिशोध नहीं, गुस्सा नहीं, प्यार, प्यार के आधार से अनुशासन को चलाना है। यही सबसे बड़ी बात जो है, इसको हमें समझना बड़ा आवश्यक। और अंत में ये कहूंगा कि सोशल मीडिया आज के जमाने की बहुत बड़ी चीज। भाइयों बहनों, फिर से कहता हूं, हमारी संस्था में हम सिर्फ इसलिए है कि हमारे परिवर्तन से, हमारे आचरण से हम भगवान की महिमा बनाए। हम यहाँ भगवान की महिमा का ढंढेरा पीटने नहीं आए। हम भगवान की महिमा का एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आए। या तो हम किसी के जो चरित्र को, जो भगवान बाबा का डिवोटी है, उस डिवोटी का नाम और बढ़े, ऐसा करने नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ भगवान बाबा के काम का लोगों तक पहुंचाने का जो काम है, वही हमारी सोशल मीडिया के जरिए होगा। हमारी सोशल मीडिया में पर्सनालिटीज को आगे नहीं बढ़ाना। आज निमिष पंड्या ने बहुत अच्छा बोला तो आज छाप दो, उसका वीडियो हर जगह जाता है। या तो किसी नारायण साहब ने किताब लिख दी तो नारायण साहब के गुणगान गाए जा रहे, नारायण साहब क्या कितनी अच्छी किताब। अरे नारायण साहब और निमिष पंड्या कुछ नहीं है, करता धरता तो बाबा है। इसका ख्याल करना। सोशल मीडिया में 3-4 चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। भगवान बाबा ने और अभी अभी मैंने सोशल मीडिया की गाइडलाइंस भेजी है। मैं जरूर चाहूंगा कि उड़िया भाषा में इसका तर्जुमा हो, इसका ट्रांसलेशन हो और उड़ीसा के सभी भाइयों बहनों तक ये पहुंचे। इसके प्रयत्न आप जरूर करें। मैं जानता हूं किया होगा आपने, होता भी होगा, और जरूर करिए। भगवान बाबा कहते हैं, आई हैव नॉट क्रिएटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू कमेमोरेट माय नेम। ये संस्था का निर्माण मैंने मेरे नाम को कमेमोरेट करने के लिए नहीं किया। इसका निर्माण सिर्फ एक ही कारण से है कि आप अपने जीवन में भगवान की अनुभूति करें। तो सोशल मीडिया में हम कौन सी चीजें बताएंगे? सोशल मीडिया में भगवान का जो संदेश है उसको आगे बढ़ाएंगे। भगवान के संदेश से प्रेरित होकर जो कार्य किया है, जिस कार्य में सेल्फलेसनेस, जो एक अनकंडीशनल लव की जो खूबसूरती है, जो एक सुगंध है, उस सुगंध को हम सोशल मीडिया से फैलाएंगे। ये नहीं कि फलाने फलाने काम किया उसका नाम, ये नहीं कि हमने किया, हम कुछ नहीं करते। सोशल मीडिया में कदापि हमने कुछ किया वो भाव नहीं आना चाहिए। भगवान ने प्रेरित किया वो भाव आना चाहिए। भगवान के संदेश को आगे बढ़ाना, भगवान के संदेश को, उसके संदेश से प्रेरित होकर जो काम हुआ है उस काम में सेवा की सुगंध वाली काम हमें आगे बढ़ाना। और यदि किसी पर्सनालिटी को भी हम आगे करते हैं तो उनके जो अनुभव है आत्मनिर्भरता के और आत्म विश्लेषण के और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के, वही हमें करने हैं। मेरी जिंदगी में ये मिरेकल हुआ, मेरी जिंदगी में मैंने ये देखा, मेरे घर में विभूति आ गई, मेरे घर में ये अमृत आ गया, मेरे घर में बाबा ने रात को सपने में आए तो 5 चरण दिखे। ये सब चीजें सोशल मीडिया में नहीं लानी। बाबा ने खुद ने कहा है, जो अभी गाइडलाइन में, उसमें एक मैसेज बात, I don't want you to commemorate my miracles. I want you to commemorate stories of transformation. ये बात सोशल मीडिया के लिए भी ध्यान देना बहुत जरूरी। भाइयों बहनों, आप देखें जो अभी आपके पास गाइडलाइंस आएगी उसको ठीक से पढ़ें। तो अनुशासन, जिसका आधार है प्यार, जिसका आधार है लोगों को परिवर्तित होने में मदद करना, परिवार को एकजुट रखना, अपने आप को पहले सुधारना, अपने आप की सेवा करते हुए परिवार की सेवा करना, फिर समाज में सेवा। सेवा एज एन एटीट्यूड,
सेवा की महिमा है कि भगवान को श्रेय दें, अपने पास कुछ ना रखें, अपने आप को आगे ना बढ़ाएं। सेवा में पैसे की कोई जरूरत नहीं, एटीट्यूड की जरूरत है। पैसा यदि चाहिए और आता है तो ट्रस्ट में डाल के उसका उपयोग करें। लोगों को चिट्ठा, हिसाब किताब क्लीन रखें। पैसे को संस्था में हाथ ना लगाएं। अपने खुद के बैंक अकाउंट, खुद पैसा जमा करना, ये सब बुरी बात है, इसको नहीं करना। सोशल मीडिया में अनुशासन की जरूरत है। संस्था में परस्पर के संबंध में अनुशासन की जरूरत है। इसको कैसे करना? प्यार मोहब्बत से करना। ये सब जो बातें हैं मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, आपके समक्ष मैं कोशिश करके आपके समक्ष रखना चाहूं, क्योंकि अंत में 7 दिन के पारायण के बाद आचरण बहुत खूब है। लोगों के भाषण जैसे मैं देता हूं इसका कोई महत्व नहीं। मैं सिर्फ वही दोहराऊं जो भगवान बाबा ने कहा, मेरा उसमें कुछ नहीं। मगर भगवान बाबा की बताई हुई चीजों को आचरण में लाना बड़ा जरूरी है भाइयों बहन। डे टू डे प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर प्रैक्टिस एवरी डे। और हमेशा शाम को सोने से पहले आज मैं कितना और काबिल हुआ हूं इन चीजों में, इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा। मुझे बहुत खुशी आप लोगों से बात करते हुए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन टुडे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया आपसे बात करने। और हमेशा मेरे मन में ये भाव रहता है कि उड़ीसा के लोग इतने उत्कृष्ट हैं, इतने आध्यात्म के स्तर पर ऊंचे हैं, उसको मैं क्या बताऊंगा। मैंने आज सिर्फ बाबा की बातों को दोहराने की कोशिश करी है भाइयों बहनों। मेरी तरफ से मैं खुद आपके जैसा एक याचक हूं। मैं भी कोशिश करता हूं अपने आप को बदलने की। मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि आप मेरे मन को काबू कर सकूं। जैसे आप लोग मेहनत करते हैं वैसे मैं भी मेहनत करता हूं। हम साथ मिलकर भगवान बाबा से प्रार्थना करें कि वे हमें आशीर्वाद दें कि हम हमारे मन को काबू कर सकें, उनकी भावना को समझ सकें और जो भी करें उनको अद्भुत करें। ऐसी भावना के साथ मैं आपकी इजाजत देता हूं। जय साई राम। Saram sir, साई राम। express our sincere gratitude to you for teaching us the path of discipline with love. Sir, we have a few questions. Can we just take them? Yes, Yes, sir. please. So we have received these questions from the participants. The first question is, sir, we get invitation from many organizations to participate in their programs. To what extent can we contribute or mix with them? हाँ, जैसे मैंने कहा, as I told you, doctor, that our policy is not to associate with any other organization. Our policy is very simple, that we are here for self-transformation. So if there are self-transformation issues with them, we will do it, but not for social work. We don't want to associate with anyone at all. But we can be catalysts. We can enable them by doing good work if it is possible. But our goal of work will be only self-transformation. Our goal of work will not be that we become partners with them. Partnership is not possible at all, and we should never be partners with any social organization at all. That is what the mandate of Bhagwan Baba is. But we can facilitate. Suppose there are government schemes and there is a village. Yes, we can become facilitators. We can become catalysts for the sake of doing that. But we will never take responsibility to go, because we are not here for doing social service. You see, Swami very clearly said, I am here for self-transformation. I want to create a new world of people who inspire each other with self-transformation. And in the bargain, yes, for example, now you have started a very good project in Odisha of the telemedicine on phone, which is a good thing to do. You see, we are here to let more and more people participate on our platform. We are not here to join other people on their platform. We want to enroll more and more people on our platform on the foundation of unconditional love and sacrifice and spiritual transformation. Therefore, when you join somebody, it is becoming their culture will come to you. You see, our culture has been given to us by Bhagwan. We don't want to corrupt our culture by their culture, because association will bring that kind of interaction, which is not correct according to Bhagwan. And therefore, I think we can become facilitators, we can become catalysts, but we will never join anybody in partnership. Thank you, sir. Sir, there is another question. Suppose X is an active worker and has been issued a Sevadal scarf badge. Can he by himself, all alone, organize relief distribution and use a scarf badge in distribution of relief in flood affected areas? What they presume is, without the organization support, by themselves can they go out and help people using the scarf badge? No.
The scarf is the symbol of a unity. The scarf is a symbol of understanding that we are all collected by divine, and individual aspirations must merge with this organization's aspiration. We are here to collectively do things together. Lone rangers are not allowed in the Sai organization, and lone rangers can do what they want, but they will never wear the scarf. The scarf entails discipline and the mandate of Satya Sai Baba, and the mandate is a collective mandate of the organization. The state president represents Bhagwan. The district president represents Bhagwan. And everybody must understand that they must learn to respect the district president, state coordinators with great respect, even if they have difficulties in their personality, even if they have flaws in their personality. But for the devotee, the vision is divine and not otherwise. And therefore, this kind of an ego will not do कि तुमने मुझे ना बोला तो मैं अकेला करूंगा. यह आध्यात्म नहीं है, यह अहंकार है, और अहंकार को हम साथ नहीं देते. और बैज अहंकार के विनाश का सिंबल है, और जो स्कार्फ पहनकर अहंकार करना, ये तो भगवान के मुंह पर तमाचा मारना जैसा है, जो हम कभी भी ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे. Thank you, sir. The last question, sir. Sai Ram, Bhagwan Baba has given less importance to advertisement of different activities done for distressed people. Will we follow his ideas now and not advertise ourselves? No. So, as you rightly said, Doctor, we are not advertising ourselves. See, when you say that Nimish Pandya did this job, then it is advertising Nimish Pandya. But in a report which you present, where you say with the great inspiration of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba, the devotees of Bhagwan have done this job, which is allowed, which is correct, we must share this. But how you present that is important. The glory should be of Bhagwan. The glory should not be of the person who's done the job. Otherwise, the whole purpose is lost. You see? So sharing the good work done by the organization in the name of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba is most important. People shy away. I've seen people, they don't take Bhagwan's name, they take their own name. Why? No. बेधड़क होकर पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम आगे देना बहुत जरूरी है. इसलिए जो हम रिपोर्टिंग करेंगे वो भगवान के नाम से करेंगे. We are only instruments in his name. You and I don't do anything. Imagine now this whole program which you are doing, if you start saying, Doctor, that this was a program conceived by Dr. Satya Patnaik, and this, then to khatam ho gaya na. Satya Patnaik is removed from the book of Bhagwan Satya Sai Baba, or Nimish Pandya is removed from. But all the good work that you do, you put it in the name of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba, के भगवान की प्रेरणा से ओडिशा के साधकों ने, डॉक्टर जो साधक हैं, उन्होंने अपने प्यार के लिए, अपने परिवर्तन के लिए, भगवान की अनुभूति करने के लिए 10,000 लोगों को मदद करी. ये बात भगवान को श्रेय जाता है ना, ये बड़ा आवश्यक है. इसको ढांचा समझना बहुत जरूरी. That's what I said. Let us understand that the glory should be of Bhagwan, not of the human being. और उसमें यदि निमिष पंड्या का नाम किसी ने नहीं लिया तो निमिष पंड्या को बुरा लगाने की जरूरत नहीं है. और उसको बुरा लगता है और बुरा व्यवहार करता है तो उसको क्वारंटाइन में डाल देना चाहिए कि तुम रहो 15 दिन क्वारंटाइन में. सोचो तुम्हारी हालत क्या है. तुमको कोविड से भी बड़ी बीमारी हो गई है, अहंकार की. Thank you so much, sir. Again, express deep gratitude to you on behalf of all our office bearers. We are all grateful to Bhagwan Satya. We are all grateful to Bhagwan, and all you guys are a great inspiration to me because it reflects Swami's glory. Namaste loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagwan Shri Satya Sai